اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 77واں اجلاس، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے افتتاحی سیشن میں شرکت۔ وزیر اعظم سیکرٹری جنرل کی جانب سے سربراہان کے اعزاز میں دیے گئے استقبالی میں بھی شریک ہوئے۔ 23 ستمبر کو وزیر اعظم جنرل اسمبلی سے خطاب میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سمیت علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال پر عالمی برادری کی توجہ دلائیں گے۔ We have a rendezvous with climate disaster. I recently saw it with my own eyes in Pakistan, where 1/3 of the country is submerged by a monsoon on steroids. Climate crisis is a case study in moral and economic injustice. موسمیاتی تبدیلیوں سے قدرتی آفات کا سامنا، پاکستان میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، عالمی برادری متاثرین کی مدد کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ ترقی پذیر ممالک پر قرضوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے عالمی سطح پر مؤثر حکمت عملی درکار ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتیرس کا جنرل اسمبلی کے افتتاحی سیشن سے خطاب۔ نیو یارک میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون اور نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم جسنڈا آرڈن سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ نیو یارک میں پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر اضافی مالی اعانت کے حوالے سے اجلاس، غیر معمولی سیلابی موسمیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے جس سے $30 ارب سے زائد کا نقصان ہوا۔ ترقی یافتہ ملک اور عالمی مالیاتی ادارے موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے الگ فنڈ قائم کریں، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری۔ اقوام متحدہ کی خصوصی سفیر انجلینا جولی کا سیلاب متاثرین سے اظہار یکجہتی، سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، متاثرین سے ملاقات، امداد اور بحالی کے کاموں کا جائزہ۔ عمران خان بلف ماسٹر ہیں، بیساکھیوں کے بغیر ڈرپوک، جھوٹے، منافق شخص کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اس کے اعصاب کو نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز کے خوف نے جکڑ رکھا ہے۔ دھمکیوں، دھوس اور بلیک میلنگ سے اقتدار میں واپسی نہیں ہوتی، ترجمان وضاحتوں کی کلا بازیاں کھا کھا کر ہلکان ہو گئے، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ عمران خان اپنی چوریوں کو چھپانے کے لیے دباؤ کا سہارا لیتے ہیں، بہروپیہ کی منافقت بے نقاب کرنا ضروری ہے، سچ ایک نہ ایک دن سامنے آ جاتا ہے۔ عمران نیازی نہ جمہوری لیڈر ہے نہ ہی جمہوری سوچ رکھتا ہے، ہمیں پاکستان کے اصل مسائل پر توجہ دینی ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی میڈیا سے گفتگو۔ میری گزارش ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا لیں کہ میں نے جو باتیں کہیں اپنی پریس کانفرنس میں جس پر یہ دہشت گردی کے مقدمات بنا رہا ہے، مجھے دہشت گردی کے مقدمات سے کوئی فکر نہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کا حق ادا اب کیا کہ میں نے اس کا ہاتھ روکا کہ بس کرو۔ میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا، مگر جوڈیشل کمیشن بنے یا اسلامی نظریاتی کونسل اس کو بھی بلائے، مجھے بھی بلائے، شریعت کورٹ اس کو بھی بلائے، مجھے بھی بلائے، اور میں نے کوئی ایک لفظ اپنے پاس سے نہیں کہا جو کلپ سنوائے۔ یہ کہتا ہے توڑ مروڑ کے وہ میں نے کلپ بنائے۔ اس پہ بھی ایک کمیشن بنا لیں۔ اگر میں نے کوئی ایسا جرم سرزد کیا ہے تو مجھے سخت ترین اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اگر کوئی جرم کیا ہے تو کمیشن بنائیں، غلط ثابت ہوا تو سزا کے لیے تیار ہوں۔ ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں کہا، عمران خان کے بیانات میں کوئی رد و بدل نہیں کیا، وہی بولا جو عمران خان نے کہا۔ عمران خان دانستہ طور پر سب کچھ کر رہے ہیں، اداروں کو نوٹس لینا ہوگا۔ وفاقی وزیر جاوید لطیف کی نیوز کانفرنس۔ عمران خان کی سیاست ختم ہو چکی، یہ شخص ہر ادارے پر حملہ آور ہو رہا ہے، اداروں کو متنازع بنانے کی اس کی کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ سیلاب کی تباہ کاریاں المیہ ہے جس سے قومی جذبے سے نمٹنا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کی لاڑکانہ میں میڈیا سے گفتگو۔
لاپتہ افراد کی بازیابی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے، تمام لاپتہ افراد کے خاندانوں سے ہمدردی رکھتے ہیں، وفاقی اور صوبائی حکومتیں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کوششیں کر رہی ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی خالد مقبول صدیقی کے ہمراہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے یورپی یونین کے سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات سمیت علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، سفیر کی متاثرین کی بحالی کے لیے پاک فوج کے کردار کی تعریف، ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ایڈپ اے ڈسٹرکٹ پروگرام شروع کر رہے ہیں، سیلاب سے محفوظ رہنے والے اضلاع ایک ماہ کے لیے متاثرہ اضلاع کے انتظامات سنبھالیں گے، مدر اینڈ چائلڈ نیوٹریشن پیک بنا کر متاثرہ علاقوں میں بھیجے جائیں گے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال، چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز اور کوارڈینیٹر نیشنل فلڈ رسپانس اینڈ کوارڈینیشن سینٹر میجر جنرل ظفر اقبال کی نیوز بریفنگ۔ الیکشن کمیشن کا ضمن انتخاب میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر عمران خان کو 23 ستمبر کو پیش ہونے کا حکم، آج پیش نہ ہونے پر نوٹس جاری، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھی 23 ستمبر تک جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ شمالی وزیرستان میں افغان حدود سے سیکیورٹی فورسز پر دہشت گردوں کی فائرنگ، پاک فوج کا بھرپور جواب، دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان، فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی نذر محمد شہید، پاکستان کے خلاف کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین کا استعمال قابل مذمت ہے، ISPR۔ کشمیر اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود سب سے دیرینہ عالمی تنازع، مسئلہ حل نہ ہونے کے باعث مسلسل جانی نقصان سے عالمی ادارے کی ناکامی ظاہر ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ پر امن دنیا کی مضبوط بنیاد رکھنے کے لیے تنازع کشمیر کو حل کرے، حریت قیادت۔ نیو یارک میں امریکی وزیر خارجہ سے آذربائیجان اور آرمینیا کے وزیر خارجہ کی ملاقات، دونوں ملک جھڑپیں روکتے، پائیدار امن کے لیے فوجی کشیدگی کی بجائے مذاکرات کا راستہ اپنانا ہوگا، امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن۔ روس کا مشرقی محاذ پر ڈونیٹسک کے علاقے میں متعدد یوکرینی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، یوکرین کے علاقے ڈونباس میں علیحدگی پسندوں کا روس کے ساتھ الحاق کے لیے ریفرنڈم کرانے کا اعلان۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں نازیہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، تفصیل شیئر کی جائے گی اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ کہاں رہ گئے تھے؟ بیلنس کیوں نہیں کرایا؟ امی وہ بیلنس کے پیسے کہیں گر گئے۔ باجی اگر موبائل اکاؤنٹ ہوتا تو گھر بیٹھے ہی بیلنس لوڈ ہو جاتا۔ کیا مطلب؟ میں آپ کو بتاتی ہوں باجی، میری بیٹی نے مجھے موبائل اکاؤنٹ کھول کر دیا ہے، میں تو آپ سے کہنے ہی والی تھی کہ اب آپ میرے پیسے میرے موبائل اکاؤنٹ میں ہی بھیج دیا کریں، پیسے گم ہونے یا رکھ کر بھول جانے کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ اچھا، پر یہ اکاؤنٹ کس بینک میں کھلتا ہے؟ بس *2262# ملائیں، ہر وقت ہر جگہ کسی بھی فون اور کسی بھی سم پر دیے گئے بینکس میں سے موبائل اکاؤنٹ کھلوائیں، نہیں تو سب پوچھیں گے موبائل ہے تو موبائل اکاؤنٹ کیوں نہیں؟ آسان موبائل اکاؤنٹ، آپ کا اکاؤنٹ، آپ کا اختیار۔ نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعتماد کے ساتھ۔ ناظرین، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں عام بحث کا آغاز، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور مختلف عالمی رہنما افتتاحی سیشن میں شریک ہیں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ترقی یافتہ ملکوں پر زور دیا کہ وہ موسمیاتی تبدیلیوں، خوراک کے بحران اور عدم مساوات جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنائیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ملکوں کو قرضوں میں ریلیف دیا جائے اور ایسی حکمت عملی وضع کی جائے جس سے ترقی پذیر ملک توانائیاں اور وسائل اپنے لوگوں پر خرچ کر سکیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں اسد یار خان۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 77واں اجلاس نیو یارک میں شروع ہو گیا ہے۔ افتتاحی سیشن میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سمیت مختلف ملکوں کے سربراہوں اور مندوبین نے شرکت کی۔ جنرل اسمبلی میں عام بحث 27 ستمبر تک جاری رہے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف 23 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ افتتاحی سیشن سے خطاب میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے ترقی پذیر ملکوں کو درپیش چیلنجز کا احاطہ کیا اور ترقی یافتہ ملکوں پر زور دیا کہ وہ دنیا میں بڑھتی ہوئی غربت، افلاس اور عدم مساوات کو دور کرنے کے لیے مؤثر حکمت عملی وضع کریں۔ Our world is in big trouble. Divides are growing deeper, inequalities are growing wider, and challenges are spreading farther. Excellencies, we need hope, and more, we need action. پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کا ذکر کرتے ہوئے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ دنیا کو موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے فضا میں آلودہ گیسوں کے اخراج کو ہر صورت روکنا ہوگا۔ We have a rendezvous with climate disaster. I recently saw it with my own eyes in Pakistan, where 1/3 of the country is submerged by a monsoon on steroids. We see it everywhere. Planet Earth is a victim of scorched earth policies. Climate crisis is a case study in moral and economic injustice. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا کہ ایسا طریقہ کار وضع کیا جائے جس سے ترقی پذیر ملکوں کو قرضوں میں سہولت ملے۔ Today I am calling for the launch of an SDG stimulus led by the G20 to massively boost sustainable development for developing countries. Multilateral development banks, the World Bank and regional counterparts must increase concessional funding to developing countries linked to investments in the sustainable development goals. We also need an effective mechanism of debt relief for developing countries, including middle-income countries in debt distress. Creditors should consider debt reduction mechanisms, such as debt climate adaptation swaps. And this could have saved lives and livelihoods in Pakistan, which is drowning not only in floodwater, but in debt. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر نے اپنے خطاب میں پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو موسمیاتی تبدیلی کی صورت میں ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ ہمیں اپنے آئندہ نسل کے محفوظ مستقبل کے لیے مؤثر لائحہ عمل اپنانا ہوگا۔ I stand in solidarity with the people of Pakistan, where devastating floods washed away hundreds of villages. You have seen the heart-wrenching scenes of devastation. This can be a window into our future. جنرل اسمبلی میں عام بحث کے آغاز سے قبل وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کی جانب سے اجلاس میں شریک سربراہان کے اعزاز میں دیے گئے استقبالیے میں شرکت کی۔ اس موقع پر نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈرن سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سیلاب سے پیدا ہونے والے بڑے انسانی المیہ کے باعث گہرے غم اور درد کی صورتحال ہے۔ جنرل اسمبلی سے خطاب اور دو طرفہ ملاقاتوں میں پاکستان کا بھرپور مقدمہ پیش کروں گا۔ اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ نیو یارک میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب، وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور وزیر مملکت خارجہ امور ہنا ربانی کھر بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ناظرین، جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف کی مختلف عالمی رہنماؤں اور تنظیموں کے سربراہوں سے ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ آج وزیر اعظم سے ایران اور اسپین کے صدور کی ملاقاتیں ہوں گی، جن میں دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق امریکی خصوصی نمائندے جان کیری کی بھی وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف دی ٹائمز سینٹر کا دورہ کریں گے اور نیو یارک ٹائمز کے ادارتی بورڈ کے ساتھ انٹرویو میں شریک ہوں گے۔
पाकिस्तान ने एक मर्तबा फिर आलमी फोरम पर मसला कश्मीर को मौसर तौर पर उजागर किया है। जनरल असम्बली में सालाना इजलास में उन्होंने इजहार ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने कश्मीर का मसला उठाया और ये कहा कि 7 दहाइयों से जायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर अभी तक हल तलब है। आलमी बिरादरी इस मसले कश्मीर के हल और मुतासरीन सैलाब की बहाली में अपना किरदार अदा करे। India and Pakistan, after having established their sovereignty and independence 75 years ago, they still haven't established peace and solidarity between one another. And this is much unfortunate. We hope and pray that a fair and a permanent peace and prosperity will be established in Kashmir. And we would like to extend our condolences sincerely to the people of Pakistan because of the disaster floods that they had experienced quite recently. And after the flood, we had launched humanitarian aid campaigns, which are still sustained. And we would like to call out to the international community to help the people of Pakistan as they are going through this most unfortunate and painful time. और तुर्किया के सर रजब तैयब एर्दोगान के खिताब के हवाले से हमने आपको आगाह किया और नाज़रीन आपको आगाह करते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ऑस्ट्रिया के चांसलर के दरमियान मुलाकात हुई है न्यूयॉर्क में। नाज़रीन अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा के 77वें इजलास के मौके पर हुई है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा का 77वां इजलास जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और ये मनाजिर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर कार्ल नेहामर के दरमियान की और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ उनकी ये मुलाकात हुई है। 77वें इजलास के मौके पर बहुत से सरबराहान मुमलिकत के साथ वज़ीर आज़म की साइड लाइन मुलाकातें शेड्यूल हैं। ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो मनाजिर आप देख रहे हैं। वज़ीर आज़म अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद हैं और उनकी मुलाकात हुई है ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर से। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहामर से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। न्यूयॉर्क अक़वाम मुत्तहिदा के 77वें सालाना इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहामर से हुई है। वफाकी चांसलर हैं कार्ल नेहामर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा उनके वफ़द के अरकान भी इस मुलाकात में शरीक हुए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया की क़यादत की मुलाकात हुई है न्यूयॉर्क में। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर कार्ल नेहामर की मुलाकात हुई है न्यूयॉर्क में। अक़वाम मुत्तहिदा का 77वां इजलास जारी है और इस इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों और इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक न्यूयॉर्क में इजलास हुआ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मुख्तलिफ मुल्कों के मंदूबीन इस इजलास में शरीक हुए। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान में गैर मामूली सैलाब मौसमानी तब्दीलियों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि तरक्की पजीर मुल्कों का ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में मामूली हिस्सा इंतहाई कम है। तरक्की याफ्ता मुल्क और आलमी मालियाती इदारे मौसमानी तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए अलग फंड कायम करें। शुरका ने G77 एंड चाइना के सदर की हैसियत में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी सफ़ीर एंजेलिना जोली सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं। उन्होंने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और नुकसानात का जायजा भी लिया। तफसील बता रहे हैं वक्कार हैदर। पाकिस्तान एक बार फिर सैलाब की बदतरीन सूरत हाल से दोचार है और इन हालात में आलमी तंजीमें और अफराद पाकिस्तान के मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। एक बार फिर एंजेलिना जोली ने पाकिस्तान पहुंचकर दादू में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया है और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की है। ये कोई पहली दफा नहीं कि एंजेलिना पाकिस्तान पहुंची है। वो 2005 के ज़लज़ले और 2010 के सैलाब में भी पाकिस्तान का दौरा कर चुकी है और मुतासरीन से मुलाकात भी की थी। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों के बच्चों में वबाई अमराज फैलने का खदशा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सैलाबी पानी निकालने में 6 माह तक लग सकते हैं। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत का सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर एडब ए डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। प्रोग्राम के जरिए बड़े अजला सैलाब से मुतासरा जिले के इंतजामी उमूर की बेहतरी में किरदार अदा करेंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने मुखय्यर हजरात से अपील की है कि मुतासरीन की मदद के लिए आगे बढ़े। रिपोर्ट कर रहे हैं राहिल अंसार।
वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि सैलाब से मुतासरा लोगों को दोबारा बहाल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा सैलाब से मुतासर हुआ है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सिस्टर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत मुतासरा इजला से मुल्हिका इजला को आपस में मुंसलिक किया जा रहा है। सूबाई हुकूमतें जो सैलाब से तबाह नहीं हुई हैं, उनके जरिए मिलकर एक सिस्टर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिसमें वो बड़े बड़े अजला जिनके पास इंतज़ामी वसाइल हैं वो मदद कर सकती हैं उन सैलाब ज़दा अजला की। जो तबाह हुआ ज़िला है उसके साथ एक ज़िला जो सही सलामत है उनको अटैच कर देंगे, ताकि डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ये बॉन्डेज बने, जिससे उनको बैकअप दिया जा सके। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने कहा कि दोस्त मुल्कों और इदारों से आने वाले इमदादी सामान का 60% सिंध, 15% बलोचिस्तान, जबकि बाकी सामान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तकसीम किया गया है। 20 ममालिक से 114 रिलीफ की फ्लाइट्स आ चुकी हैं। इनमें से 66 फ्लाइट्स का सामान नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रिसीव किया। अब तक आने वाली 13 फ्लाइट्स तुर्किया से, 30 UAE से, 5 चाइना से, 4 ओमान से, 3 फ्लाइट्स कतर से और एक फ्लाइट दीगर ममालिक से सामान लेकर आई हैं। NFRCC के कोऑर्डिनेटर मेजर जनरल जफर ने कहा कि इस वक्त मुल्क में गंदम की कोई कमी नहीं। इस वक्त जो गंदम के स्टॉक्स हैं वो वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। हमारे पास 7 मिलियन टन गंदम मौजूद है और 1 और मिलियन टन आ रही है, तो गंदम की कोई शॉर्टेज नहीं है। जो लोग इसकी कीमतें बढ़ा रहे हैं उनके खिलाफ भी हुकूमत एक्शन करेगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना था कि अगर हम सब पाकिस्तानी मुतहरिक हो जाए तो हमें बैरूनी इमदाद की जरूरत नहीं। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने न्यूयॉर्क में मुलाकात की और तालीम के फ़रोग़ के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। इस मुलाकात में लड़कियों की तालीम, ख़वातीन के हुकूक और सैलाब ज़दा इलाकों में तालीमी सरगर्मियों की बहाली पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इमरान खान ब्लफ मास्टर हैं, धमकियों, धौंस और ब्लैकमेलिंग से इक़्तिदार में वापसी नहीं होती। एक बयान में उन्होंने कहा कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में तवाज़ुन के मशवरे देने वाले इमरान खान के ज़हनी तवाज़ुन की फ़िक्र करें। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ इमरान न्याज़ी के बयान का एक ही जवाब है, पास कर या बर्दाश्त कर। उन्होंने कहा कि जिस शख्स के अपने असाब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के खौफ में जकड़े हों वो किसी हकीकी आज़ादी की बात करता है। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान ने मरीम नवाज को जेल में डालकर सोचा कि इसे डरा लेंगे। उल्टा ये हुआ कि ये शख्स मरीम नवाज के डर और खौफ में आज तक मुब्तला है। उन्होंने कहा कि इमरानी हिकमत अमली ये है कि चापलूसी और ब्लैकमेलिंग करो, धौंस जमाओ, ब्लफ करो और फिर झूठ बोलो। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इमरान न्याज़ी का दिमागी तवाज़ुन उलट चुका है, कभी न्यूट्रल, कभी जानवर, कभी इल्ज़ाम, कभी वजाहत। बिसाखियों के बगैर डरपोक, झूठे और मुनाफिक शख्स को कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करे। इमरान खान बताएं कि कौन धमकी देता है। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान न्याज़ी ने जाली मुकदमे बनाकर सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाला और ये सोचा कि शायद वक्त नहीं बदलेगा। इमरान खान अब भीख मांग रहे हैं और इसके तर्जुमान वजाहतों की कलाबाजियां खा खा कर हलकान हो गए हैं। मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि इमरान खान अपनी चोरियों को छुपाने के लिए दबाव का सहारा लेते हैं। बहरूपिये की मुनाफिकत बेनकाब करना ज़रूरी है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि लोगों को खौफ का बुत तोड़ने का कहने वाले में खुद किसी के नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। तफसील जानते हैं मलिक उमर से। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि मैं जमहूरियत की हामी हूँ, ताहम जत्थे लेकर हमला आवर होना जमहूरी इक़्तिदार के मनाफी है। साजिश का डंडोरा पीटने वालों ने आज अपना बयानिया बदल लिया है। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान की नाअहल हुकूमत ने मुल्क को तबाही के दहाने पे ला खड़ा किया है। जमहूरी राय का एहतराम करती हूँ, लेकिन ये बात जमहूरी जमातों के लिए और ये जमहूरी लीडरान के लिए, जो इंसान जत्थे लेकर आ जाए और कभी वो कहे कि प्राइम मिनिस्टर को गर्दन से निकालो, मार मार के पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ दें, और उसके बाद वो जब कहे कि मैं इलेक्शन की डेट लेने आ रहा हूं तो पूरे इस्लामाबाद को नजर आतिश कर दे और जो इमलाक हैं उनको नजर आतिश कर दे और जत्थे लेकर हमला आवर हो कि मेरी बात अगर नहीं मानी तो मैं आग लगा दूंगा,
मैं इसको ना जमहूरी जमात समझती हूँ, ना जमहूरी रवैया समझती हूँ, ना जमहूरी लीडर समझती हूँ। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान को दूसरों पर मुकदमात बनाने की बजाय अपने बयानात जिम्मेदारी से देने चाहिए। बजाय इसके कि जावेद लतीफ साहब पे मुकदमा बने या बाकियों पे बने, आप अपनी बात तो देखें, आप कह रहे हैं, या आपकी मेंटल कंडीशन इतनी खराब हो गई है कि आपको ये पता नहीं है। और अगर स्लिप ऑफ टंग भी है तो फिर भी आपको शर्म आनी चाहिए। एक इंसान जो अवाम से खिताब कर रहा है, अवाम के जहनों में अपनी बात डाल रहा है, उसको खास तौर पर जब मजहब का मामला आए तो 10 दफा सोच के एक बात कहनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान का वतीरा है कि जहां मुश्किल पेश आए वहां वो इदारों और सरकारी एहलकारों को डराने धमकाने लग जाते हैं। इस मामले का सदेबाब होना चाहिए। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ कहते हैं कि इमरान खान ने अपनी जुबान को लगाम न दी तो अवामी रद्द-ए-अमल आएगा। इस्लामाबाद में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मनसूबाबंदी के जरिए इदारों को निशाना बनाया जा रहा है। तमाम सियासी जमातें ये कह रही हैं कि इमरान खान ने तमाम हदें अबूर कर ली हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में जो बातें की हैं उनका जायजा लेने के लिए अदालती कमीशन बनाया जाए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं गुजारिश कर रहा हूं ये भी कि इस पे कमीशन कोई बना लें। मेरी गुजारिश है इस पे जुडिशियल कमीशन बना लें कि मैंने जो बातें कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस पर ये दहशत गर्दी के मुकदमात बना रहा है, मुझे दहशत गर्दी के मुकदमात से कोई फिक्र नहीं। मैं तो ये समझता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी का हक अदा अब किया कि मैंने इसका हाथ रोका कि बस करो। मैं इससे आगे नहीं जाना चाहता, मगर जुडिशियल कमीशन बने या इस्लामी नजरियाती कौंसिल इसको भी बुलाए, मुझे भी बुलाए, शरीयत कोर्ट इसको भी बुलाए, मुझे भी बुलाए, और मैंने कोई एक लफ्ज अपने पास से नहीं कहा जो क्लिप सुनवाए। ये कहता है तोड़ मरोड़ के वो मैंने क्लिप बनाए। इस पे भी एक कमीशन बना लें। अगर मैंने कोई ऐसा जुर्म सरजद किया है तो मुझे सख्त तरीन उसकी सजा मिलनी चाहिए। पार्लिमानी कमीशन बनाएं, जुडिशियल कमीशन बनाएं, शरीयत कोर्ट में लेकर जाएं, इस्लामी नजरियाती कौंसिल को दें, या आलमे दीन जो हैं हर मकतबा फिक्र के उनको इकट्ठा करके इनके क्लिप सुनवाएं, इसकी गुफ्तगू सुनाएं, अदारों के मतलब जो कुछ कहता है वो सब कुछ सुनवाएं, और उसके बाद फैसला करें कि ये इमरानी फितना किसके एजेंडे पर काम कर रहा है। मियां जावेद लतीफ ने कहा कि इमरान खान ये एतराफ़ कर चुके हैं कि वो एजेंसियों की मदद से हुकूमत चलाते रहे। इन्हें इस बात की वजाहत करनी चाहिए कि एक्स वाई कौन है और किन लोगों के इनको फ़ोन आते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इमरान खान खुद इम्पोर्टेड हैं और इनकी सियासत खत्म हो चुकी है। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म का आईनी इख्तियार है। इमरान खान ने इस अहम मामले को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ये शख्स हर इदारे पर हमलावर हो रहा है, लेकिन हम पर असरअंदाज नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सैलाब की तबाहकारियां अलमिया है जिससे कौमी जज्बे से निमटना होगा। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने सैलाब मुतासरीन से भी मुलाकात की और उनके मसाइल मालूम किए। उन्होंने मुतासरीन में राशन और खाने पीने की अशिया तकसीम की। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को 23 सितंबर को पेश होने का हुक्म दिया है। पेशावर में सुबह इलेक्शन कमीशन में होने वाली समाअत में इमरान खान पेश नहीं हुए, जिस पर इन्हें नोटिस जारी किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से उनके वकील पेश हुए और जवाब जमा कराने के लिए वक्त मांगा। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला को भी 23 सितंबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत की। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मफरूजे पर नहीं जा सकते, नैब दस्तावेजात से नवाज शरीफ का प्रॉपर्टी से ताल्लुक साबित करे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल बेंच ने इस केस की समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ की अपील मेरिट पर नहीं, अदम हाजिरी पर खारिज हुई। उन्होंने कहा कि नैब के मुताबिक नवाज शरीफ ने 1993 में असासे खरीदे और छुपाए। इस बात को शवाहिद से साबित करना है कि मरियम नवाज ने अपने वालिद की मुआवनत कैसे की। अदालत ने कहा कि पहले ये समझा जाए कि 1993 में नेल्सन और नेस्कोल का नवाज शरीफ से क्या ताल्लुक था। केस की मजीद समाअत 29 सितंबर को होगी।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कराची में MQM पाकिस्तान के मरकज़ का दौरा किया और राब्ता कमेटी के अरकान से लापता अफराद के मसले पर गुफ्तगू की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि गुमशुदा अफराद की बाजियाबी रियासत की जिम्मेदारी होती है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें इस सिलसिले में इक़दाम कर रही हैं। तफसील बताएंगे सुहेल जमाली। MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद में मीडिया से बात करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ऐसी फैमिलीज जिनके प्यारे उनसे जुदा इस तरह से होते हैं कि लापता हो जाते हैं, तो वो तो हर पल जो है, हर पल उनके लिए जो है वो एक क़यामत है कि हम कोई कसर उठा नहीं रखेंगे और जो लापता अफराद हैं उनकी बाजियाबी के लिए हर मुमकिन जो है वो कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि ये एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है उसकी दुनिया में भी बदनामी हो रही है और बहुत सारी ऐसी बैनुल-अक़वामी तंजीमें हैं जो इसके ऊपर जो है वो सवाल उठाती हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है और मुल्क के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान अगर हिम्मत रखते हैं तो XY के बजाय नाम लें। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो हैं वो पाकिस्तान का दिफा करने के ऊपर पूरी तरह से जो है वो कामिल हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का न सिर्फ दिफा किया जाएगा बल्कि उसकी सरहदों की और इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसको पूरी तरह से जो है वो यकीनी बनाया जाए। मिस्टर X और मिस्टर Y जो है ये इमरान खान साहब को पता होना चाहिए या उनको पता होगा, तो अगर वो इतनी जुर्रत के मालिक हैं और वो इतना हौसला रखते हैं तो फिर ये XY करने की क्या ज़रूरत है? फिर सीधी सीधी बात करें या फिर बात करना जो है वो छोड़ दें। मीडिया से बात करते हुए MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि लापता अफराद के मामले में खुसूसी दिलचस्पी लेने पर वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारे प्यारे अपने घरों तक वापस हो, उसमें कोई भी कानून साजी करनी है, हम तैयार हैं आपके साथ। इससे कबल वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर अयाज सादिक ने MQM पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकात की। मुलाकात में जारी सियासी सूरत हाल, लापता अफराद के मसाइल और दूसरे अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने लापता अफराद के अहले खाना से भी मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। वज़ीर दाखिला ने उन्हें अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर देते हुए कहा है कि तिजारत में इजाफा और तिजारती हजम को दोनों ममालिक के दरमियान बेहतरीन दो तरफ़ा ताल्लुकात के बराबर लाया जाए। तुर्किया में पाकिस्तान के नामजद सफ़ीर डॉक्टर यूसुफ जुनैद से गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान तुर्किया के साथ दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। अशिया की तिजारत के माहदे पर दस्तखत से दरमियानी मुद्दत में $5 अरब के दो तरफ़ा तिजारती हदफ को हासिल करने की राह हमवार होगी। सदर मुमलिकत ने कहा कि दुनिया में बिलखुसूस भारत में मुसलमानों को रोज़ाना की बुनियाद पर डराया और हरासा किया जा रहा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के तनाज़े पर तुर्किया की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि कंबोडिया और पाकिस्तान के दरमियान सरमायाकारी और तिजारत के वसी मौके मौजूद हैं। कंबोडिया के वर्ल्ड ब्रिज ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल वफ़द से गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि दोनों मुल्कों में टेक्सटाइल का शोबा मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि आलमी शराकतदारों की मदद सैलाब मुतासरीन की बचाव और बहाली में अहम होगी। उन्होंने ये बात रावलपिंडी में यूरोपीय यूनियन की सफीर से गुफ्तगू करते हुए कही। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और हम मुश्तरका मुफादात की बुनियाद पर इन्हें मजीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म हैं। मुलाकात में मुश्तरका मुफादात की बुनियाद पर दो तरफा रवाबित को मजीद आगे बढ़ाने की उम्मीद का इजहार किया गया। यूरोपीय यूनियन की सफीर ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही पर अपने दुख का इजहार करते हुए मुकम्मल ताउन की पेशकश की। उन्होंने मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ कोशिशों में सिविल इंतजामिया के मुआवनत के लिए पाक फौज की कोशिशों को सराहा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं और नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे का काम भी जारी है।
हालिया सैलाब के बाईस मजमूई तौर पर 12,716 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा और 374 पुल तबाह हुए। सूबा सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों में कंबर शहदाद कोट, जैकबाबाद, लाड़काना, खैरपुर, दादू, नुशैरो फिरोज, ठट्ठा और बदीन के अजला शामिल हैं, जबकि बलोचिस्तान में कोयटा, नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, बोलान, सोबतपुर, लसबेला, खैबर पख्तूनख्वा में दीर, सवात, चारसद्दा, कोहिस्तान, टांक और सूबा पंजाब में डेरा गाजी खान और राजनपुर के अजला हालिया तबाहकुन सैलाब से मुतासिर हुए। सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे अफराद को निकालने के लिए आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने मजमूई तौर पर 574 परवाजें की। गुज़श्ता 24 घंटे में 5 परवाजों के जरिए 6 टन से ज़ायद इमदादी अशिया मुतासरा इलाकों में पहुंचाई गयी। अब तक मजमूई तौर पर 4,653 महसूरीन को भी हेलीकॉप्टर परवाजों के जरिए रेस्क्यू किया गया है। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में 147 रिलीफ कैंप्स और 218 इमदादी अशिया जमा करने के पॉइंट्स कायम किए गए हैं। अब तक 9,597 टन खुराक, 1,627 टन अशिया जरूरिया और 88,51,438 अद्वियात सैलाब मुतासरीन के लिए जमा की जा चुकी हैं, जिनमें से 9,476 टन से जायद खुराक, 1,605 टन अशिया जरूरिया और 88,38,728 अद्वियात सैलाब मुतासरीन में तकसीम की जा चुकी हैं। 300 मेडिकल कैंपों में 3,19,868 मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम की गई और 3 से 5 दिन की अद्वियात भी मुफ्त दी गयी। पाक आर्मी और FC बलूचिस्तान की जानिब से सैलाब मुतासरीन की दोबारा अपने इलाकों में आबादकारी के लिए इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में राशन के पैकेट्स हेलीकॉप्टर्स के जरिए पहुंचाए जा रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पशीन, लोरालाई, बोलान, डेरा बुगटी, खुजदार, जाफराबाद, नसीराबाद, झलमक्सी, डेरा मुराद जमाली, सोबतपुर और अवारान में 4,666 अफराद में राशन, पानी की बोतलें, खुश्क दूध, जूस, खुर्दनी तेल के अलावा गर्म कपड़े, खेमे, मच्छरदानियां तकसीम की गयी। वबाई अमराज और दीगर बीमारियों पर काबू पाने के लिए आर्मी, FC बलूचिस्तान और PDMA की जानिब से 68 फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया गया, जिनमें 18,253 मरीजों का इलाज मुआवजा किया गया और मुफ्त अद्वियात फराहम की गयी। ज़राए आमदोरफ्त की बहाली के लिए आर्मी, FC बलूचिस्तान और कोस्ट गार्ड की सिविल इंतजामिया के हमरा कोशिशें जारी हैं। बलूचिस्तान की तमाम शाहराहें ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दी गई हैं। पाक बहरिया ने सैलाब मुतासरीन के लिए 4 फ्लड रिलीफ सेंटर और 18 इमदादी अशिया जमा करने के पॉइंट्स कायम कर रखे हैं। पाक बहरिया ने अब तक 1,617 टन राशन, 5,642 खेमे और 7,19,000 लीटर पीने का साफ पानी सैलाब मुतासरीन में तकसीम किया है। इसके साथ साथ पाक बहरिया की कायम करदा 11 खेमा बस्तियों में 20,507 सैलाब मुतासरीन को रिहाइश की सहूलियात फराहम की गई हैं। मुल्क भर में पाक बहरिया की 23 इमरजेंसी रिस्पांस टीमों ने मजमूई तौर पर 15,393 महसूरीन को रेस्क्यू किया। ये टीमें 46 मोटराइज बोट्स और 2 हूवर क्राफ्ट से लैस हैं। पाक बहरिया ने अंदरूनी सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 2 हेलीकॉप्टर्स भी तैनात कर रखे हैं। अब तक 63 परवाजों के जरिए इन हेलीकॉप्टर्स ने 475 अफराद को रेस्क्यू किया और 4,811 राशन के पैकेट्स भी तकसीम किए। पाक बहरिया की 8 गोताखोर टीमों ने सैलाब मुतासर इलाकों में 27 ऑपरेशन भी मुकम्मल किए। इसके साथ साथ 71 मेडिकल कैंपों में पाक बहरिया 73,434 मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलत भी फराहम कर चुकी है। पाक फिजाइया ने सैलाब मुतासर इलाकों में डेंगू, मलेरिया, डायरिया, हैजे और दीगर मूजी अमराज से निपटने के लिए फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। पानी से पैदा होने वाली बीमारियों की तेजी से तशखीस के लिए मुख्तलिफ मेडिकल लैब कलेक्शन पॉइंट्स भी कायम किए गए हैं। पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट बीड़ा सैलाब जदगान के महफूज इनखला के साथ खुराक और तिब्बी सामान के नकलो हमल में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जरूरतमंद खानदानों में 18,550 खाने के पैकेट्स, पानी की बोतलें और 1920 बुनियादी ग़िज़ाई अजनास पर मुश्तमिल राशन पैक तकसीम किए गए। मुफ्त खुराक और रिहाइश की फराहमी के अलावा पाक फिजाइया के फील्ड मेडिकल कैंप्स में पाक फिजाइया की मेडिकल टीमों ने 1,440 मरीजों का मुफ्त इलाज भी किया। सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी बरादरी की जानिब से इमदादी सामान भिजवाया जा रहा है। मुख्तलिफ मुल्कों और तंजीमों की जानिब से 116 तैयारे पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। अमान से इमदादी सामान लेकर 2 परवाजें जिना एयरपोर्ट कराची पहुंची। अमानी कौंसल जनरल, वजारत खारजा और NDMA हुक्काम ने सामान वसूल किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पाकिस्तान में चीनी सफारत खाने के जरिए बलूचिस्तान में सैलाब जदगान के लिए राशन और इमदादी सामान फराहम कर रही है। इमदादी सामान में अशिया जरूरिया समेत दीगर रोजमर्रा की अशिया शामिल हैं। इमदादी सामान जिला कोयटा के शदीद मुतासरा इलाकों पश्तूनाबाद, कली नासरान, सरियाब, हजारा टाउन के अलावा कल्लात, खारान, नसीराबाद, जाफराबाद, ओस्ता मोहम्मद और दीगर अजला में भी तकसीम किया जा रहा है। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। सिंध के कई इलाकों में अभी तक पानी मौजूद है। मुतासरीन को राशन, मच्छरदानियाँ और दूसरी ज़रूरी अशिया की फराहमी जारी है। तफसील बता रहे हैं जीशान अहमद। सूबे सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों में आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह कम हो रही है, ताहम अब भी बेशतर इलाके पानी में डूबे हुए हैं और मुतासरीन इमदादी कैंपों में मुकीम हैं।
सिंध हुकूमत की जानिब से पानी के निकास के लिए हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई है जो सैलाब ज़दा इलाकों में काम कर रही है। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पाक आर्मी और दीगर फलाही इदारों की जानिब से सैलाब मुतासरीन की भरपूर इमदाद की जा रही है। ताहम शदीद गर्मी और हब्स के बाइस अक्सर कैंपों में वबाई अमराज फैल रहे हैं, जिसके बाइस तिब्बी कैंप्स लगाए जा रहे हैं। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह से बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर ने कराची में मुलाकात की। इस मौके पर बरतानवी हाई कमिश्नर ने वज़ीर आला सिंध के साथ सैलाब में जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। वज़ीर आला ने उन्हें बताया कि शदीद बारिशों के बायस दरिया के राइट साइड और लेफ्ट साइड पर वाक़ शहर पानी में डूब गए हैं। सैलाब से मुतासरा अफराद की तादाद 15 लाख से ज्यादा है। वज़ीर आला ने कहा कि सिंध हुकूमत को सैलाब मुतासरीन के लिए खैमे और मच्छरदानियों की अशद जरूरत है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि बरतानिया मुसीबत की इस घड़ी में पाकिस्तान की भरपूर मदद करेगा और 50 कंटेनर्स, शेल्टर और प्लास्टिक शेड्स अगले 2 हफ्तों में कराची पहुंच जाएंगे। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तखफीफ गुर्बत के वफाकी वजीर शाज़े मरी ने कहा कि सैलाब की तबाहकारियों को अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत 25 अरब से ज़ायद रकम मुस्तहिक अफराद में तकसीम की जा चुकी है और हमारी पूरी कोशिश है कि इसमें किसी किस्म की कटौती नहीं की जाए। शाज़े मरी ने कहा कि अब तक 10,81,000 से ज़ायद खानदान इस प्रोग्राम से फैज़याब हो चुके हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है पिछले 14 वर्षों का। जिस तेज़ी से प्राइम मिनिस्टर के ऐलान के बाद 25,000 रुपए की रकम उनको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है और हम ये कोशिश अभी तक जारी रखे हुए हैं। हमें एक टारगेट मिला हुआ है और अभी भी उस टारगेट के मुताबिक हमें 2.8 मिलियन जो लोग हैं उन तक पहुंचना है और इसमें मज़ीद भी इजाफा हो सकता है इंशाल्लाह, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब की ये ख्वाहिश है कि हम हर अफेक्टेड फैमिली तक ये रकम पहुंचाएं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वाहब ने कहा कि सिंध में 30 से 24 अजला सैलाब से मुतासिर हैं और इन अजला में 436 मेडिकल कैंप्स काम कर रहे हैं। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। शुमाली वज़ीरिस्तान में अफगान हुदूद से सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों की फायरिंग का पाक फौज का भरपूर जवाब दिया, जिसके नतीजे में दहशतगर्दों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। फायरिंग के तबादले में बहादुर सिपाही नजर मोहम्मद धरती पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक 19 सितंबर को दहशतगर्दों ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दावतोई में बैनुल-अक़वामी सरहद के उस पार अफगान हुदूद से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की। पाक फौज ने दहशतगर्दों की फायरिंग का मौसर जवाब दिया, भरपूर जवाब दिया और काबिल भरोसा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। तहम फायरिंग के तबादले में जाफराबाद की रहायशी 34 साल सिपाही नजर मोहम्मद बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करें। कश्मीरी हुर्रियत क़यादत ने उम्मीद जाहिर किया कि अक़वाम मुत्तहिदा एक पुरअमन दुनिया की मजबूत बुनियाद रखने के लिए कश्मीर जैसे तनाज़ात के हतमी हल के लिए एक काबिल अमल फार्मूला सामने लाएगा। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मसरत आलम बट, शबीर अहमद शाह, नईम अहमद खान और आसिया अंदराबी ने नई दिल्ली की तहाड़ जेल से अपने बयानात में कहा है कि कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद सबसे पुराना आलमी तनाज़ा है और उसके हल न होने के बाइस मुसलसल जानी नुकसान से आलमी इदारे की नाकामी जाहिर होती है। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों के सियासी मुस्तकबिल से वाबस्ता कश्मीर जैसे मसाइल के हल किए बगैर एक पुरअमन, तरक्की पसंद और खुशहाल दुनिया की ख्वाहिश करना जागती आंखों के ख्वाब देखने के मुतरादिफ है। कश्मीर की मजहबी, समाजी और तालीमी तंजीमों के नुमाइंदा फोरम मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने श्रीनगर से एक बयान में कश्मीर के स्कूलों में हिंदू भजन गाने पर शदीद एतराज करते हुए कहा कि ये कश्मीरियों की मजहबी शनाख्त को कमजोर करने की साजिश है। उन्होंने असातिज़ा पर जोर दिया कि वो ऐसे अहकामात को न माने जो उनके मजहबी अकायद और शनाख्त के खिलाफ हों। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने मकबूजा इलाके में मजहबी मकामात पर दस्तारबंदी पर आयत करने पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर की तमाम मजहबी रिवायात को ख़त्म करना चाहती है। दूसरी जानिब भारत के बदनाम ज़माना रियासती तहकीकाती इदारे SIA ने पैरामिलिट्री, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और पुलिस के साथ मिलकर श्रीनगर और बारामूला अजला में जमात इस्लामी के फलाह आम ट्रस्ट के दफातर पर छापे मारे हैं। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 483वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात शुरू हो गई हैं। करतारपुर में तकरीबात में शिरकत के लिए अंदरून मुल्क समेत दुनिया भर से सिख यात्री पहुंच रहे हैं। बाबा गुरु नानक की बरसी पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू वायरस से अब तक 36 अफराद जान बहक हो चुके हैं। वायरस के फैलाव और उस पर काबू पाने के लिए इकदामात से आगाह कर रहे हैं शाहरुख शफी।
महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सुबह भर से 215 डेंगू के मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें रावलपिंडी से 54, लाहौर से 105, जबकि गुजरावाला से 18 केसेस रिपोर्ट हुए। शेखुपुरा, साहिवाल, सरगोदा और भक्कर से 4, गुजरात से 5, लोधरा और बिहाड़ी से 3-3, जबकि फैसलाबाद, रहीम यार खान और पाकपतन में 2-2 केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल अब तक पंजाब भर में डेंगू बुखार से 4 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। कराची समेत सूबा सिंध में डेंगू बेकाबू हो गया है। कराची में अब तक डेंगू से 27 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। शहर कायद में गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 248 मरीज डेंगू का शिकार हुए। हैदराबाद में 69, मीरपुर खास में 31, सखर डिवीजन में 3, जबकि शहीद बेनजीर आबाद डिवीजन में 2 अफराद डेंगू का शिकार हुए। इसी तरह मजमूई तौर पर 24 घंटों में सूबा सिंध में 353 अफराद डेंगू के मर्ज में मुब्तला हुए। रवां महीने में सूबे भर में 3594 अफराद डेंगू का शिकार हुए, जबकि साल 2022 में अब तक 6163 लोग डेंगू के मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के वार जारी हैं। सूबे भर में डेंगू वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 276 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। सूबे में डेंगू वायरस से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 4980 तक पहुँच गई है। डेंगू वायरस के सबसे ज्यादा केसेस मर्दान में 1658 रिपोर्ट हुए हैं। पेशावर में 968 और जिला खैबर में 666 रिकॉर्ड किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस से मजमूई तौर पर 27 अजला मुतासर हुए। महकमा सेहत की जानिब से डेंगू पर काबू पाने के लिए मुअस्सद इंसदाद डेंगू कार्रवाइयाँ जारी हैं और आवाम से कोरोना के साथ साथ डेंगू से बचाव की एहतियाती तदाबीर अपनाने की भी अपील की गई है। शाहरुख शफी, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंजरानी ने इस्लामाबाद में आलमी इदारे सेहत के दफ्तर का दौरा किया। पाकिस्तान में WHO के सरबराह ने बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए तिब्बी इमदादी सामान चेयरमैन सेनेट के हवाले किया। इस मौके पर मोहम्मद सादिक सिंजरानी ने कहा कि सैलाब ज़दगान को साफ पानी और खुराक की फराहमी पर तवज्जो मरकूज़ है। डॉक्टर पालिथा माहीपाला ने कहा कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने के लिए कोशा हैं। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंजरानी से यूरोपीय यूनियन की ज़ैली कमेटी बराए इंसानी हकूक़ की चेयरपर्सन मारिया आरीना की सरबराही में यूरोपियन पार्लियामेंट के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि यूरोपियन पार्लियामेंट पाकिस्तान के साथ GSP+ मुआहदे को जारी रखे। इस्लामाबाद में यूरोपीय पार्लियामेंट के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर काबू पाने के लिए आलमी बिरादरी का ताउन इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि कोई भी तनहा मुल्क मौसमियाती तब्दीलियों की तबाहकारियों से नहीं निमट सकता। तरक्की याफ्ता ममालिक अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि वस्ती और जुनूबी इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाल मशरकी पंजाब में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील सिब्बी 41 और नौकुंडी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।